Good morning, students. This video is focused upon the uses of a very important punctuation mark, that is comma. Comma indicates the shortest pause. It customarily indicates a brief pause, and a comma is not as final as a period or a full stop. Comma as a punctuation mark is very versatile. It indicates brief pauses in spoken utterances. It indicates a light pause, a smallest pause, and we use it mainly to separate a structural unit of a sentence, to set off confusing main clauses, parenthetical material closely related to the main thought, direct quotations, forms of direct address, coordinative adjectives and words or numbers and so on. इनके अलावा भी बहुत सारे कोमा के uses हैं and the most important ones we are going to do in this video. कोमा के लिए ये भी कहा जाता है that it accounts for over 60% of all the punctuation marks we make use of. In other words, the comma is a versatile and also misused punctuation mark. बहुत बार जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती है कोमा की वो भी हम लगा देते हैं, but the current usage favors the insertion of a comma only where we intend a pause. Alright, let us learn how to use comma in a text. As for the importance of comma, we have already done a few examples like a woman without her man is nothing. ये एग्जाम्पल एंड टाइम टू ईट किड्स, यहाँ पर एक प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कोमा कैन चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस. So let us start and try to understand how to use comma correctly. First of all, comma is used to separate a series of words, while the last two are connected by and. For example, the colors in my bedroom are blue, green and yellow. तो यहाँ पर हम बोलते समय देखते हैं कि जो पॉज है ब्लू एंड ग्रीन के बाद में एक पॉज है, एक स्टॉपेज है, बट बहुत ही लाइट सा है, बहुत ही ब्रीफ है. तो ये जो सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर कोमा लगाया और जो लास्ट टू है इनके बीच में एंड लगाया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Rakesh, Rajesh and Ramesh went to Shimla. So there are three names, three proper nouns. Rakesh and Rajesh को separate करने के लिए एक brief pause यहाँ पर दिया with the help of comma and जो last two है इन्हें separate किया and से. Rakesh, Rajesh and Ramesh went to Shimla. Next example is this newspaper is free, frank and fearless. So free and frank के बीच में लगाया comma. Do you want some cakes, candies or ice creams? So cakes and candies को separate किया with the help of comma. And last two are joined by either or and. So do you want some cakes, candies or ice creams? Another use of comma is it is used to separate a series of phrases. इससे पहले हमने किया series of words को separate करने के लिए we use comma and then we use comma to separate a series of phrases also. Let us look at the example. I like reading books, listening to music, watching TV and studying English. So here are four phrases in this sentence. Reading books separated by a comma, फिर नेक्स्ट फ्रेज लिया लिसनिंग टू म्यूजिक, देन कॉमा, एक पॉज, उसके बाद में वॉचिंग टीवी एंड स्टडिंग इंग्लिश. So these phrases are separated by a brief pause and that brief pause is indicated by comma. Next example is democracy is the government of the people, by the people and for the people. So here are three phrases: of the people, by the people, for the people. So of the people and by the people इन दोनों को एक brief pause दिया है दोनों के बीच में and that has been indicated in written text by comma. और last के जो दो हैं उनको separate किया गया है and से. So we separate phrases also with the help of comma and always remember that comma denotes a brief, a light
pause. Comma is also used to separate two independent clauses in a compound sentence joined by a coordinating conjunction like for, and, nor, but, or, yet, so. कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और इन्हें इस तरह की जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनके साथ में इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है और इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करते हैं कोमा के साथ में. Let us look at the examples. He worked very hard because he wanted to win a scholarship. He worked very hard, a little pause, because he wanted to win a scholarship. So यहाँ पर ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिनको इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में कनेक्ट किया गया है और इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ कोमा. He worked very hard because he wanted to win a scholarship. Next example is the dog chased the cat but the cat ran up a tree. तो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं बट के साथ में इनको कनेक्ट किया गया है और इन दोनों ही क्लॉजेस को सेपरेट किया है कोमा से. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज सारा वांट्स टू गो टू द थिएटर एंड स्मिथ वांट्स टू गो टू द जू. तो स्पीच में भी हम देखते हैं कि दोनों जो फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज फिनिश होता है वहां पर हम एक वी टेक अ लिटिल पॉज और उस लिटिल पॉज को टेक्स्ट में रिटन में हमें इंडिकेट करने के लिए ये कोमा को दिखाने की जरूरत पड़ती है, कोमा को लगाने की जरूरत पड़ती है. सारा वांट्स टू गो टू द थिएटर एंड स्मिथ वांट्स टू गो टू द जू. देन आई वांटेड टू गो हाइकिंग बट इट वाज टू कोल्ड. मुझे हाइकिंग के लिए जाना था लेकिन बहुत ठंड थी. I wanted to go to hiking, but it was too cold. Next example is I was feeling hungry, so I made a sandwich for myself. So I was feeling hungry, उसके बाद में pause लिया comma के साथ में, so I made a sandwich for myself. और हमने सभी sentence को end किया full stop के साथ में. So this is how we separate two independent clauses which are joined by a coordinating conjunction. Another use of comma is that it is used to mark off a word in the vocative case. अब vocative case क्या होता है? When you write a sentence that directly addresses someone using their name or title. तो वो जो name या title होता है, वो जो noun होता है, that is vocative case. इसे nominative case भी कहते हैं. Means when the noun is the name of a person spoken to or addressed, इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस. तो ये नाउन का वोकेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है जब हम डायरेक्टली किसी को एड्रेस करते हैं उस नाम से. तो उस वोकेटिव केस को या उस नाउन को भी सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. डू यू लाइक हॉर्सेस जो. अब ये जो है मतलब जो को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है, उसे संबोधित किया गया है. सो यहाँ पर ये जो नाउन है दिस इज इन द वोकेटिव केस. ऑलराइट, सो इस वोकेटिव केस को नाउन के इस वोकेटिव केस को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया जाता है. डू यू लाइक हॉर्सेस जो. देन अनदर एग्जांपल इज मोहन ओबे योर पेरेंट्स. यहाँ पे मोहन से डायरेक्टली बात की जा रही है, मीन्स उसको एड्रेस किया जा रहा है. सो इसलिए मोहन इज इन यहाँ पर वोकेटिव केस में है और इसलिए इसको बाकी के सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग कोमा. तो यदि नाउन वोकेटिव केस में आता है सेंटेंस में, मीन्स व्हेन वी एड्रेस समवन यूजिंग देयर नेम और टाइटल, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करेंगे. देन हियर इज योर वॉच ब्रदर. यहाँ पर भी ब्रदर वर्ड का यूज किया गया है और ये वोकेटिव केस में क्योंकि ब्रदर को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है, तो यहाँ पर कोमा. Next example is will you Sam show me how to do the mathematics problem. यहाँ पर Sam बीच में आया है लेकिन वोकेटिव केस में है, तो दोनों ही तरफ यहाँ पर कोमा का यूज किया गया है. will you कोमा Sam कोमा show me how to do the mathematics problem. तो Sam को विद इन कोमाज में रखा गया है पूरे सेंटेंस में. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज yes teacher I will finish my work.
तो ये जो टीचर है वोकेटिव केस में है, टीचर को एड्रेस किया जा रहा है, इसे कोमा से सेपरेट किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिस्टर जॉनसन काइंडली सी मी टुमारो। मिस्टर जॉनसन को डायरेक्टली संबोधित करते हुए बात की गई है, तो इसलिए इसके बाद में भी कोमा। देन थैंक्स फॉर ऑल योर असिस्टेंस हेनरी। यहाँ पे हेनरी से बात की जा रही है, उसको कहा जा रहा है डायरेक्टली, तो इसको सेपरेट किया कोमा से। मीन्स चाहे वोकेटिव केस में नाउन सेंटेंस के बिगनिंग में आए, मिडिल में आए या लास्ट में आए, उसको कोमा से बाकी के सेंटेंस के साथ में हमें सेपरेट करना होता है। Then we use comma to separate words and phrases in apposition. Apposition means addition of one word or group of words to another as explanation. Apposition होता है around a description of someone or something in a sentence that has already been identified. किसी व्यक्ति या वस्तु जिसको ऑलरेडी सेंटेंस में आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी और एडिशनल डिस्क्रिप्शन देना उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। तो उन वर्ड्स को या उन फ्रेजेस को भी हम कोमा से सेपरेट करते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे। लाला लाजपत राय द लायन ऑफ पंजाब वॉज अ ग्रेट लीडर। सो सेंटेंस है लाला लाजपत राय वॉज अ ग्रेट लीडर। लाला लाजपत राय का जो यहाँ पर एपोजिशन के जो वर्ड्स हैं वो मतलब इसको एक्सप्लेन, इस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स हैं द लायन ऑफ पंजाब। तो इन वर्ड्स को हम सेपरेट करेंगे कोमा से। यहाँ इसके बिगनिंग और एंड, ये जो एपोजिशन में जो वर्ड्स हैं इनको हम सेपरेट करने के लिए दोनों ही तरफ कोमास का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज my brother Harish has got a prize in this competition. So the person has already been identified here, my brother has got a prize in this competition, but इसको और explain करने के लिए इसका description दिया गया है my brother, कौन मेरा brother? हरीश। तो हरीश हुआ यहाँ पर एपोजिशन में और इसको दोनों ही तरफ यहाँ पर कोमा से सेपरेट किया गया है। फर्स्ट जो पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो भी, और ये जो इस एपोजिशन के जो बाद का पार्ट है उसको भी सेपरेट करने के लिए, इस एपोजिशन वाले वर्ड्स को, फ्रेज को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिस्टर जॉनसन माई मैथ टीचर हैज टोल्ड अस टू स्टडी फॉर द टेस्ट। सो द सेंटेंस इज मिस्टर जॉनसन हैज टोल्ड अस टू स्टडी फॉर द टेस्ट। नाउ व्हाट इज माई मैथ टीचर? ये जो माई मैथ टीचर है वो क्या है बीच में? दीज आर द वर्ड्स इन एपोजिशन। ओके, एपोजिशन किसका? मिस्टर जॉनसन का। मिस्टर जॉनसन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। मिस्टर जॉनसन को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन इसके बारे में, इनके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इस पार्ट को हम कोमा से सेपरेट करेंगे बाकी के सेंटेंस के साथ में। देन माई ग्रीन बाइक विच हैज़ ए फ्लैट टायर इज पार्क्ड इन द गैरेज। My green bike is parked in the garage. This is a sentence of my green bike को इन वर्ड्स के साथ में, ये वर्ड्स हैं, these words are in apposition which has a flat tire, तो इसको हमने कोमास के साथ में बाकी के सेंटेंस से सेपरेट किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फुटबॉल विच इज अ पॉपुलर स्पोर्ट is very good for health. So the main idea is football is very good for health. यहाँ फुटबॉल को ये एक्सप्लेन किया गया है। So these words, this phrase is in apposition to फुटबॉल। तो ये जो एपोजिशन वाले जो भी वर्ड्स हैं इनको हम कोमा से सेपरेट करेंगे बाकी सेंटेंस के साथ। देन वी हैव अ वेरी कॉमन यूज ऑफ कोमा। Comma is used to separate reported speech from the reported speech in direct form of narration. नरेशन में हम करते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन का यूज करते हैं। व्हेन राइटिंग ए कोट वी यूज कोमास टू सेट अपार्ट द कोटेशन। यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको इस रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट स्पीच में हम इसे करते हैं। माई मॉम सेड कॉमा, फिर ये कोटेशन मार्क, बी नाइस टू योर सिस्टर, और फुल स्टॉप इनके बीच में आता है। एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।
यहाँ पर कोमा से सेपरेट किया इस रिपोर्टिंग वर्ब को। फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, माई मॉम सेड, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पहले आई है, तो जो कोमा है वो इन जो कोटेशन मार्क्स है या इन्वर्टेड कोमास जिनको कहते हैं उनसे बाहर रहेगा। माई मॉम सेड कोमा, देन उसके बाद में इन्वर्टेड कोमास के साथ में या कोटेशन मार्क्स के साथ में आपका सेंटेंस रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच रहेगी, बी नाइस टू योर सिस्टर। बट व्हेन ये जो रिपोर्टेड स्पीच अगर पहले आ जाती है सेंटेंस में तो कोमा इनसाइड द कोटेशन मार्क्स रहेगा। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच। तो कोमा इन कोटेशन मार्क्स के इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहेगा, फिर सेड द डॉक्टर एंड देन फुल स्टॉप। लेकिन कोमा का दोनों ही केसेस में कोमा का काम है रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑनेस्टी सेड द टीचर इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के बाद में कोमा, ये कोटेशन मार्क्स के अंदर ही रहेगा कोमा यहाँ पर। सेड द टीचर, यहाँ पर कोमा बाहर रहेगा और नेक्स्ट जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो यहाँ पर कोटेशन मार्क्स के साथ में लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट कोमा ही सेड। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये पहले आ गया है सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आ गया है, तो कोमा विद इन कोटेशन मार्क्स रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास रहेगा, ही सेड। उसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच और ही आस्क्ड, अगर पहले रिपोर्टिंग स्पीच आ जाती है तो कोमा बाहर रहेगा और उसके बाद में इन्वर्टेड कोमास के साथ में कोटेशन मार्क्स के साथ में आपका सेंटेंस जो भी है वो रहेगा। डू यू वांट टू गो विथ मी?